آج کیورا کے اوپر بڑے مزے کا سین ہوا ہے کہ ایتھسٹ نے کمنٹ کیا اور کہتا ہے، کمنٹ کے اوپر آ کے دعویٰ کرتا ہے کہ کس طریقے سے ثابت کرو گے کہ ہمارا خدا جو نام کا JOE جو ڈز ناٹ ایگزسٹ، اور کہنے لگا کہ یہ ثابت نہیں کر سکتی، امپاسبل ہے. تو اس نے اصل میں یہ کمنٹ کیا تھا اللہ کے خلاف. جب میں نے ادھر کمنٹ کیا تھا ایتھسٹ کے اندر اور بتایا تھا کہ جیزس جو ہے وہ اس حوالے سے کوئی ثبوت نہیں کسی بھی غیر مسلم کے پاس یا ایتھسٹ کے پاس کہ جیزس ڈز ناٹ ایگزسٹ، لیکن اس بات پہ ثبوت ہے کہ اللہ ڈیفینیٹلی ایگزسٹ کرتا ہے. اور جب اللہ ایگزسٹ کرتا ہے ڈیفینیٹلی تو پھر جیزس بھی ایگزسٹ کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تو خدا ہے اور جیزس اللہ کے بنائے ہوئے ایک انسان اور اس کے سیکنڈ لاسٹ پروفٹ، کیونکہ آخری نبی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لیکن پھر آگے سے کیا ہوتا ہے اس ایتھسٹ کے ساتھ؟ اس نے یہ تو کہہ دیا، اس کے بعد دعویٰ بھی کر دیا اس نے کہ ناممکن ہے کہ تم ہمارے خدا جو کو ثابت کر دو کہ وہ ایگزسٹ نہیں کرتا، کیونکہ اس کے مطابق یہ بات تھی، لاجک اس کی یہ تھی کہ جو چیز موجود نہیں ہے اس کو یہ ثبوت کہاں سے لاؤ گے کہ وہ موجود نہیں ہے. یہ تھی اصل اس کی لاجک اور سینس. کیا ایتھسٹ عقل استعمال کرتے ہیں یا نہیں؟ اب یہیں سے اندازہ لگا لو نا. میں نے اس کو کہا کہ ایک کام کرو، آؤ یوٹیوب لائیو پر آ جاؤ میرے ساتھ، ٹھیک ہے. اور اس نے کلیم میں یہ بھی کہا تھا کہ سالڈ پریکٹیکل قسم کا سالڈ ایک ایسا ثبوت لانا جو واقعی میں پریکٹیکل بھی ہو، دیکھا جانے والا ٹائپ کا ہو، جس سے پتہ لگے واقعی میں جو ہے نا وہ ایگزسٹ نہیں کرتا. تو میں نے اس کو کہا ٹھیک ہے یوٹیوب لائیو پہ آ جاؤ میرے ساتھ، وہاں پہ چلتے ہیں. اور یوٹیوب لائیو پر تم آنا تاکہ شکل کے ساتھ آؤ تاکہ پتہ لگے کہ یو آر نوٹ اے بوٹ، ٹھیک ہے. تو حقیقی انسان ہو، واقعی میں اصلی ہو، 100% انسان ہو، اصلی ہو، اور آ کے یوٹیوب پر لائیو آنا. وہاں پر میں تمہیں دکھاؤں گا تمہاری ریکوائرمنٹ کے حساب سے ایسا ثبوت جو یہ ثابت کرے گا کہ واقعی میں تمہارا جو ہے نا وہ ایگزسٹ نہیں کرتا خدا کے طور پہ. اس کے بعد اس کی بولتی کیا ہوئی؟ بند نہیں ہوئی، آیا پھر. اور آگے سے آگے جو ہے نا اس نے آئیں بائیں شائیں والا سین اٹھا لیا. کیوں؟ مقصد اس کا یہی تھا کہ یار مطلب تم یہاں کیورا پہ کیوں جواب نہیں دے سکتے، وہاں پہ کیوں آنا ہے، ایسا ہے کیوں ویسا ہے کیوں ہے. میں نے آگے سے اس کو اتنا کہا کہ بھائی تم نے ہی تو کلیم کیا ہے، ثبوت دو کہ جو ایگزسٹ نہیں کرتا. میں نے کہا تمہیں کہہ تو رہا ہوں آ جاؤ یوٹیوب لائیو پر، تمہیں بھی دیکھ لیتے ہیں اور تمہارے سامنے ثبوت بھی رکھ دیتے ہیں. تو اب تم اتنا خوفزدہ سے کیوں فیل کر رہے ہو کہ یوٹیوب لائیو پہ نہیں آ رہے؟ تو اس کے بعد سے وہ خاموش ہو گیا. اس اسٹوری میں کیا ہے ایسا جو سمجھنے والی بات ہے؟ یہ تو آپ سوچو، کیونکہ آپ تو اللہ کو خدا نہیں مانتے. تو آپ سوچو اگر اللہ کا وجود نہیں تو اتنا کانفیڈنس لیجنڈ کے پاس کہاں سے ہے؟ اگر اللہ کا وجود نہیں تو محمد ذیشان سے چینل پر اتنے سارے ثبوت اللہ کے وجود پہ کہاں سے ہیں؟ اگر اللہ موجود نہیں تو نیچر کے درند پرند چرند اللہ کا نام کیوں لیتے ہیں؟ اگر اللہ موجود نہیں تو ابھی ریسنٹلی 2 نومبر 2021 اور 3 نومبر 2021 دو ایونٹ ہوئے اللہ کے فضل سے. 2 نومبر میں چیلنج ہوا تھا گاڈز آف نان مسلمس کو، دیکھو صبح کا ایونٹ ہوا تھا 12 بجے تک. کیسے اللہ نے مختلف جو ہے نا آپ بادلوں کے ذریعے اپنے ناموں کو لکھ کے دکھایا، کبھی ادھر کبھی لیفٹ کبھی رائٹ کبھی دائیں کبھی بائیں، اس طریقے سے. کیورا پہ اس کا بھی سوال چھوڑ دیا. آج مزے کی بات بتاؤ، یہ سوال ڈال کر آیا اللہ کے فضل سے پوچھ کر کیا ہے کوئی کسی اور کا خدا جو اس کے سر پر اور اس کے دائیں بائیں لیفٹ رائٹ اپنے نام لکھ کے دکھائے ریئل ورلڈ کے اندر؟ اگر ہے تو ثبوت پیش کریں. آپ پیش کر سکتے ہیں؟ نہیں نا. اگر آپ کہیں گے کہ ہاں تو ثبوت پیش کر دیں. اگر آپ کہہ دیں کہ نہیں تو کیوں نہیں کر سکتے؟ کہ بھئی آپ اپنے ان کو پکاریں مدد کے لیے. اگر آپ ایتھسٹ ہیں تو پھر آپ سوچیں، اور اگر آپ غیر مسلم ہیں یعنی خدا کو ماننے والے غیر مسلم ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر آپ سوچیں کہ اللہ کیوں اپنا نام دکھا سکتا ہے لکھ کر. اور وہی 3 نومبر 2021 کے دن اس نے سیب کے ذریعے بھی لکھ کے دکھا دیا، سیب کے اندر. تو وہ ایونٹ بھی موجود ہے اللہ کے فضل سے، ٹھیک ہے. اس ویڈیو سے پچھلی ویڈیو میں آپ کو مل جائے گا وہ. کیا ہے یہ ریئل ورلڈ میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ سوچیں نا، سوچیں تو صحیح. آپ کو یہ جو اتنے سارے دنیا کے اندر مذاہب بنا کے رکھے ہوئے انسانوں نے، اور یہ اتنے سارے جو مذاہب کے اندر جو غیر مسلم ہو کے مذہبی پیشوا پنڈت پادری پوپ وغیرہ کہانیاں سنا رہے ہیں، اور جو اتنے سارے یوٹیوب کے چینلوں پہ بیٹھ کر غیر مسلم اپنے چینل چلا رہے ہیں، اور جتنے سارے بہت سارے دنیا کے انسان مخالفت میں کھڑے ہوئے ہیں اللہ کی اور اسلام کے خلاف کانٹینٹ بنا رہا ہے، اور وہ جتنے سارے دنیا بھر کے اندر بہت سے غیر مسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کانٹینٹ بھی بنا رہے ہیں اور بہت سے گستاخیاں بھی کرتے ہیں.
تو آخر کیا وجہ ہے کہ جن کی مخالفت کر رہے ہیں ان کی مخالفت کرنے میں تو ہیں، لیکن جو اللہ ہے اصل اس کائنات کا خدا، اس اللہ کے وجود کو نان ایگزسٹنس ثابت نہیں کر پا رہے، لیکن اللہ نے 100% اپنے وجود کو ایگزسٹنس ثابت کر دیا 21ویں صدی میں معجزات دکھا دکھا کر، ایک دو دفعہ نہیں، معجزات کی لائن لگائی ہوئی ہے اس نے، میریکلز کی لائن لگائی ہوئی ہے اس نے، دنیا بھر میں میریکلز ڈیمونسٹریٹ کرنا شروع کرتی ہیں 21ویں صدی کے اندر۔ لیکن اگر کوئی عقل سے کام لے، کامن سینس سے کام لے، تھوڑا سا بیسک کامن سینس چاہیے، زیادہ نہیں۔ آخر کیسا ممکن ہے ہواؤں کے اندر اچانک سے بادلوں کے ٹکڑے آ جاتے ہیں اور وہ شیپ تبدیل کر لیتے ہیں اللہ کے نام میں؟ کیسے ہو رہا ہے؟ اگر اللہ نہیں ہے تو کون کر رہا ہے؟ یہ بادلوں کو کنٹرول کون کر رہا ہے؟ اور لیجنڈ کے ساتھ اتنے واقعات کیوں پیش آئے بادلوں کے ساتھ؟ آخر کیا ہو گیا؟ یہ زمین و آسمان کے لشکروں کے اندر تبدیلیاں ہو رہی ہیں، موسم تبدیل ہو جاتے ہیں، بادل تبدیل ہو جاتے ہیں، آندھی طوفان آ جاتے ہیں، زلزلے آ جاتے ہیں۔ یہ کیسے ہو رہا ہے؟ کون کر رہا ہے یہ لیجنڈ کے ساتھ؟ کون کر رہا ہے یہ لیجنڈ کے ذریعے بھی؟ کون کر رہا ہے لیجنڈ کے لیے بھی؟ آخر کس کے پاس یہ پاورز ہیں، طاقت ہے جو 21ویں صدی میں ڈیمونسٹریٹ کر رہا ہے؟ اسرائیل میں زلزلہ آ گیا، آیا، جھٹکے پڑے اسرائیل کو۔ لاہور میں آندھی طوفان آ گیا شدید گرمی کے موسم میں، محکمہ موسمیات کے مطابق ممکن ہی نہیں تھا۔ کراچی میں کورونا نیچے چلا گیا، 30% اوپر کراس مار رہا تھا، ڈاؤن ہو کے چلا گیا نیچے۔ کون تھا اس کے پیچھے؟ کس کا ہاتھ تھا؟ سامنے تو لیجنڈ ہے، لیکن لیجنڈ خود کیسے کر سکتا ہے پورے کراچی شہر کے کورونا کو کم؟ وہ تو گھر پہ تھا۔ لاہور شہر کے پورے لاہور شہر میں آندھی طوفان کیسے مچا سکتا ہے لیجنڈ تو گھر پہ تھا۔ اسرائیل پہ زلزلہ کیسے بھیج سکتا ہے لیجنڈ تو گھر پہ تھا۔ سوچنے والی بات ہے نہیں ہے؟ 21ویں صدی میں ہو آپ، کہاں 21ویں صدی؟ وائرلیس کے دور میں ہو۔ کیسے ہو رہا ہے یہ سب کچھ؟ کون کر رہا ہے؟ لیجنڈ کے ساتھ کون ہے ایسا؟ اتنی پاور کس کے پاس ہے؟ آنن فانن کر دیتا ہے یا کبھی تھوڑا ٹائم میں کرتا ہے، جب کرنا چاہتا ہے کرتا ہے۔ لیجنڈ سے مجھ سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ ایسا کرنا ہے، اور اگر وہ کرنا چاہتا ہے تو کر دیتا ہے، اور جب وہ کر دیتا ہے تو ریئل ورلڈ میں ہو جاتا ہے۔ آخر کون ہے وہ؟ انسان تو نہیں ہو سکتا نا، سوچنے کی بات ہے۔ اگر وہ انسان ہے کوئی، تو ایک انسان کے پاس یہ پاور کیسی؟ اور لیجنڈ کس انسان سے ایسی مدد لے رہا ہے کہ وہ انسان زلزلہ بھی بھیج رہا ہے، آندھی طوفان بھی لا رہا ہے، کرونا بھی کم کر رہا ہے، کرونا ڈیکریز بھی کرتا ہے، انکریز بھی کر دیتا ہے، وہ موسم بھی پلٹ جاتا ہے، وہ گرمی کی شدت پوری دنیا میں ایک دم ایکسٹریم ہاٹ بڑھا دیتا ہے، پھر کم کر دیتا ہے۔ آخر وہ کون ہے جو لیجنڈ کی ریکویسٹ پہ جب قبول کر لیتا ہے تو وہ ایسے کام کر دیتا ہے اور اس کے پروف لیجنڈ بنا لیتا ہے؟ پھر لیجنڈ کو کون یہ انفارمیشن دے دیتا ہے ایسا 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 یوں ہوا ہے؟ اس کی انٹرپریٹیشن کر کے لیجنڈ پھر بتاتا ہے اور ثبوت بھی لاتا ہے کہ یہ دیکھو یہ کلیم تھے اور ایسا ہو گیا، یہ چیز تھی اور ایسا ہو گیا۔ آخر کون ہے اس کائنات میں ایسا جس سے لیجنڈ مدد لے رہا ہے؟ سوچو، کوئی تو ہے، کوئی ہے، اور وہ انسان نہیں ہے۔ وہ اس کائنات کا کوئی ایسی ہستی ہے جس کے پاس کنٹرول ہے پوری زمین و آسمان کا، پورے نظام کا، زمین و آسمان کی مخلوقات کا نظام ہے، وہ کنٹرول کر رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ ہر ایک کو دیکھ رہا ہے، واچ کر رہا ہے، اور اس کا ایکسس اتنا پاورفل ہے کہ وہ جب چاہے جہاں چاہے کچھ بھی کر سکتا ہے، چاہے آنن فانن، چاہے تھوڑا ٹائم لے، چاہے اپنی مرضی سے کبھی بھی کرنا چاہے، چاہے ڈیلے کر کے لے آئے، لیکن وہ ہے، کوئی ہے، کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے۔ ورنہ لیجنڈ خواہش کرے کہ پوری دنیا میں زلزلے آ جائیں، ایک بات کرتا ہوں، اور لیجنڈ کی خواہش میں پوری دنیا میں زلزلے آ جائیں گے، کہتے کامن سینس کام کر رہا ہے آپ کا؟ لیجنڈ خواہش کرے آندھی طوفان مچ جائے، آندھی طوفان مچ جائے اچانک دنیا کے اندر، کئی شہروں کے اندر الٹ جائے، کئی ملکوں کے اندر آندھی طوفان زلزلے آنا شروع ہو جائے اور تہس نہس ہونا شروع ہو جائے، مطلب کامن سینس کام کر رہا ہے، خود بخود ہو جائے گا ایسا؟ نہیں ہو سکتا نا خود بخود۔ اور اگر لیجنڈ نہ بھی چاہے اور اگر ایسا ہو رہا ہے تو کہیں گے کہ قدرتی طور پہ ہو رہا ہے، نیچرل ہو رہا ہے، یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے۔ تو چلو ہوتا رہتا تھا، ہے نا، یہی کہتے ہو نا، ہوتا رہتا ہے، چلو ہوتا رہتا تھا، لیکن اب تو 21ویں صدی میں ثابت ہو چکا کہ نیچر کے قوانین کو بدل کے پلٹ کے دکھایا کسی نے لیجنڈ کی ریکویسٹ پر، اور تبھی کیا جب لیجنڈ نے ریکویسٹ کی، اور ہوا تو تب کیوں ہوا، اور سائنسی اداروں کے خلاف کلیمز پہ کیوں ہوا؟ یہ موجودہ 21ویں صدی کے کورونا کے خلاف کیسے ہو گیا؟
डेल्टा की वेव के खिलाफ कैसे हो गया? कोरोना के इंक्रीज करने में और डिक्रीज करने में लेजेंड बीच में कहाँ से आ गया? सोचने की बात है, इतने जो इवेंट्स हुए हैं, मोहम्मद ज़ीशान अशर चैनल पे कोई कम है? जब से मेरी इंटरव्यू हुई है, अल्लाह के बदल से देख तो लो सबूत कैसे कैसे है। कोरोना पे है, डेल्टा पर है, ऑफर्स पर है, गवर्नमेंट्स को ऑफर दी हुई, हुक्मरानों के लिए ऑफर्स दी, इदारों के नाम पे ऑफर्स दी, पाकिस्तान आर्मी के नाम पे ऑफर, इंडिया की पुलिस के नाम पे ऑफर, अंग्रेजी जुबान में दूसरे ममालिक के हुक्मरानों के नाम पे, प्रेसिडेंट्स प्राइम मिनिस्टर्स के नाम पे ऑफर। आखिर कैसे, कौन, किसकी वजह से? एक इंसान कैसे कह रहा है ये? क्योंकि 21वीं सदी के अंदर एक इंसान है, मुस्लिम मैन, लेजेंड ऑफ अल्लाह, बाय द मर्सी ऑफ अल्लाह इन द 21st सेंचुरी, इसलिए ऐसा है, मुमकिन है। डिवाइन इम्यून, कहां से आ गई डिवाइन इम्यूनिटी? डिवाइन इम्यूनिटी फॉर एवर, divine shield activation in the physical body of real world human in the 21st century। कोरोना की किसी भी वेब से बेअसर, चाहे अनकरीब हो चाहे आने वाली फ्यूचर में कोई भी हो, बेअसर। व्हाट इज दिस? कॉमन सेंस काम कर रहा है? अगर काम कर रहा है तो सोचो ये मुमकिन है, क्योंकि सामने एक बंदा वीडियो पे बैठ के बात कर रहा है, सामने कैमरे में बात कर रहा है, बोल रहा है। तब तो वैक्सीन भी नहीं थी, तब से वो क्लेम कर चुका है। तो ये मैरेकस, ये डेमोस्ट्रेशन, ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये मौजज़ात, ये ज़मीन और आसमान की चरिंद परिंद की मखलूक़ात के अल्लाह के हुक्म से कलाम करना, नाम दिखाना शुरू कर देना अल्लाह का, ये सब क्या हो रहा है 21वीं सदी में? क्योंकि कैमरों का दौर है। क्योंकि 21वीं सदी में बहुत से लोग कहते थे ज़मीन के ऊपर बैठे हुए, चीख चिल्लाते थे, रोते थे, बहुत से, मुसलमानों में भी, सिर्फ आप गैर मुस्लिमों में नहीं, मुसलमानों में भी शक व शुबात में मुब्तला, एथिज़्म की वजह से। कहता है अगर कोई खुदा है तो वो अपने खुली निशानियां क्यों नहीं दिखाता? अगर कोई अल्लाह है तो वो हमसे बात क्यों नहीं करता? वो हमारे सामने खुल्लम खुल्ला मुआजिज़ा क्यों नहीं लेके आता? अगर उनकी कॉमन सेंस उनकी भी काम करे तो वो भी देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, और मोहम्मद ज़ीशान अशर चैनल पे क्या क्या सबूत आ चुके हैं। वरना rightfulreligion.com वेबसाइट पे चले जाओ और देख लो कि क्या क्या मौजूद है। क्या ये कम है? क्या नॉर्मल बात है कि एक सुन्नी मुस्लिम मौलाना अबरार आलम अपने घर पे बैठा होता है और वो एक सुन्नी मुस्लिम पूरी दुनिया के अंदर किसी भी लाइलाज मरीज के इलाज और ऑपरेशन और मेडिकल ऑपरेशन कर सकता है अल्लाह के हुक्म से? कहाँ से उसके पास ये एक्सेस है? एक शख्स घर में बैठे हुए पूरी दुनिया के अंदर एक्सेस है उसके पास, किसी भी मरीज को ठीक कर सके वो? कैसे? एक शहीद मुस्लिम शाह अकीक बाबा ठट्टे में चौड़ जमाली गाँव के अंदर, वहाँ कब्र के अंदर तदफीन हुई हुई है, शहीद है, 500 साल गुजर गए, लेकिन मज़ार पे जाने वाले लाइलाज मरीजों के इलाज और मेडिकल ऑपरेशन कर रही है रूह। कैसे? उस सुन्नी मुस्लिम शहीद की जो रूह है वो कैसे कर रही है? पाकिस्तान के मीडिया चैनल ने जो है ना उस पर प्रोग्राम्स किए हुए हैं, BBC ने उसके ऊपर पब्लिश किया हुआ है, अखबारात के अंदर उस हवाले से बयान आए हुए हैं, रिसर्च हुई हुई है, टीमों ने रिसर्च की हुई है, जाके जर्नलिस्ट वगैरह ने रिपोर्टिंग की हुई है। क्या हो रहा है? 21वीं सदी है ना, दुनिया भर के अंदर, पूरे वर्ल्ड में, पूरे ग्लोबल वर्ल्ड के अंदर, जमीन के अंदर करोड़ों मुसलमानों की, करोड़ों नेक मुसलमानों की लाशें बिना केमिकल इस्तेमाल हुए तरोताज़ा हालत में मौजूद है। बहुत सौ की लाशों में तरोताज़ा खून है, बहुत सौ के बाज जो है ना बालू नाखून भी बढ़ चुके हैं, जमीन के अंदर दफन है, और जिस्म वैसे का वैसे ही है, कोई केमिकल नहीं है। जबकि गैर मुस्लिम केमिकल लगा लगा के अपने ढांचों पर वैक्स लगाते हैं। कितना एक्सपोज किया हुआ है। नेशनल ज्योग्राफिक ने खुद रिपोर्टें पेश की हुई हैं उनके डॉक्टर और उनके साइंटिस्ट वगैरह के साथ कि वो मास्क लगा रहे हैं, पैक कर रहे हैं, और उसी चीज़ की उसकी फ़ोटो भी मिल जाती है गूगल पर कि उनके सैंड की वो फ़ोटो जिसके ऊपर वो केमिकल लगा रहे हैं उसी की फ़ोटो के हिसाब से सब लगाया हुआ है। क्या जी ये है, ये काम हो रहा है, मैनुअल वर्क। तो कौन है जो मुसलमानों, सिर्फ नेक मुसलमानों की लाशों को महफूज कर रहा है पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया में, पूरे ग्लोब पर, पूरे ग्लोब में जहाँ जहाँ लाशें मुसलमानों की लाशें हैं उनमें नेक मुसलमानों की लाशें महफूज कर रहा है वो? कौन है? अल्लाह है। अल्लाह के मुकाबले में तो कोई नहीं ऐसा कर रहा। कौन है जिसने पूरी दुनिया के अंदर हजारों लाखों मुसलमानों को ये हॉली पावर दी हुई है, हॉली मेमोरी दी हुई है कि वो उसके कलाम को 100% हिफ्ज कर लेता है। किसके? अल्लाह के कलाम को। कौन सा कलाम? कुरान, कुरान करीम, कुरान पाक। और उसको हिफ्ज कर रहे हैं, मेमोराइज कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे मुसलमानों के हिफ्ज करे जाते हैं, 3-3 साल तक के भी। और सिर्फ नॉर्मल बच्चे भी नहीं, ऐसे ऐसे इंसान मुसलमानों में, कोई अंधा है, कोई गूंगा है, कोई बहरा है, ऐसे ऐसे कैसे कर रहे हैं?
कौन दे रहा उनको ये ताकत है? और पूरी दुनिया में कोई भी गैर मुस्लिम ऐसा नहीं, ना बच्चा, ना बूढ़ा, ना जवान, ना अंधा, ना बहरा, ना गूंगा, जिसने अपनी, चलो अंधा गूंगा तो बात की बात है, नॉर्मल भी ऐसा नहीं, जिसने अपनी मजहबी पूरी किताब को हिफ्ज कर लिया 100%, और वो उसी तरह से सुना सके जैसे मुस्लिम बच्चे, बड़े छोड़ो बच्चे जैसे मुसलमानों के वो अपने अल्लाह के कुरान को सुना देते हैं। क्यों नहीं है? तो मुसलमानों को किसने दे दी ये पावर? अल्लाह ने दी। और ये क्या कहते हैं, डॉक्टर जाकिर नाइक, कितना अर्सा हो गया डॉक्टर जाकिर नाइक को प्रीचिंग करते हुए किताबों के जरिए? वो तो किताब को यूज करते हैं ना। चलो मैरिकल्स की डेमोस्ट्रेशन है वो नहीं कर रहे हैं अपनी स्टेज पे, मैरिकल्स नहीं दिखा रहे, वो लाशों को नहीं दिखा रहे, वो शाह बाबा की रूह नहीं दिखा रहे, वो काम लेजेंड कर रहा है अल्लाह के फजल से। लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक तो एक वर्ल्ड लेवल पे काम कर चुके हैं ना, फेमस तो है ना, एक सेलिब्रिटी तो है इस्लाम की तरफ से। तो डॉक्टर जाकिर नाइक को कोई गैर मुस्लिम मजहबी पेशवा शिकस्त क्यों नहीं दे सका अब तक? क्यों? he is an undefeatable debater and preacher from Islam. इस्लाम से ही क्यों? इस्लाम में ऐसा क्या है? क्या है ऐसा इस्लाम में? मोहम्मद अली ने इस्लाम कबूल किया, क्या सिद्ध होगा? धुलाई लगा दी, क्या हशर किया फिर उसने? खबीब को देख लो, है क्या सीन है? क्या होता है आखिर इस्लाम के अंदर? ये पावरें कहां से मिल जाती है? क्योंकि अल्लाह असली और सच्चा खुदा है, और आंखों से गैर मुस्लिम देख रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है। आप गैर मुस्लिम, आप और दीगर गैर मुस्लिम देख रहे हो आंखों से कि क्या हो क्या रहा है इस्लाम की तरफ से। लेकिन नहीं, वही बात, अल्लाह ने ऐसा क्यों किया? जमीन पे जुल्म क्यों हो रहा है? जमीन पे गुर्बत क्यों है? अगर ये था तो वो क्यों नहीं था? अगर अल्लाह है तो सामने क्यों नहीं आ जाता? अगर यूं, अरे भाई पहले इस पर आओ कि खुदा है या नहीं है कोई कायनात का। अगर कोई खुदा नहीं है तो खत्म, ठीक है, फिर किसी को भी खुदा ना मानो। लेकिन अगर सबूत नजर आ रहे हैं, अगर प्रैक्टिकल नजर आ रहे हैं, तो कम से कम पहले इसको एक्सेप्ट तो करो कि खुदा है। खुदा एक्सेप्ट नहीं करना लेकिन बहस करनी है फजूल चीजों में, इसका मतलब यही है ना कि हरदर्मी, इसको हरदर्मी कहते हैं, इसको नजरअंदाज करना कहते हैं कि हम नहीं मानना चाहते, तो नहीं मानोगे चाहे हजारों सबूत सामने आ जाए। तो अल्लाह ने जो कुरान में बताया हुआ है वो ऐसे नहीं बताया हुआ कि अगर वो फरिश्ते नाजिल कर दे आसमान से और जमीन से मुर्दे निकाल दे, इनसे बातें करना शुरू कर दे, इनकी आंखों के सामने, इनके चेहरों के सामने लाके खड़ा कर दे वो मुर्दों को। वो अगर लाए वो ये भी कर सकता है, लेकिन तब भी नहीं मानोगे, क्योंकि जो हट धर्म है वो नहीं मानना चाहते, वो मानना ही नहीं, दिल में बदनीयती है, अंदर से बदनीयत होते हैं, इसलिए नहीं मानते। क्या किसी मरे हुए इंसान की रूह का लाइलाज मरीजों का इलाज ऑपरेशन करना मामूली बात है? हॉरर मूवी नहीं चल रही, रियल वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, पैरासाइकोलॉजी की बात नहीं हो रही, रियल वर्ल्ड में हो रहे ऑपरेशन। कौन कर रहा है? कैसे कर रही है एक रूह? कर रही है। कहाँ है साइंसदान दुनिया के बड़े बड़े जो बड़े दावे करते हैं कि रूह का वजूद नहीं है? कहाँ है दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट जो कहते हैं कि अल्लाह का वजूद नहीं? कहाँ है दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट जो कहते हैं कि खुदा का वजूद नहीं? कहाँ ये बड़े बड़े फन्ने खान इस जमीन के ऊपर? कहाँ मर गई है? क्यों इनकी क्यों नहीं है नेशनल ज्योग्राफिक की टीम क्यों नहीं एक्सपोज कर पा रही? शाकिब बाबा को आए रिसर्च करके चलो एक्सपोज ही कर दे कि जी नहीं हो रहा ऐसा। भाई मुस्लिम मीडिया की तरफ से तो है ना सब कुछ। और क्यों नेशनल ज्योग्राफिक ने ये गैर मुस्लिमों के हवाले से तो लाशों में प्रोग्राम कर दिया कि वो केमिकल लगाते हैं, तो सबूत मौजूद है उनकी, अपने गैर मुस्लिमों के सबूत है कि वो केमिकल लगाते हैं। तो कोई डिवाइन काम तो है ही नहीं, कोई खुदाई अमल भी नहीं है। लेकिन मुसलमानों की तरफ नेशनल ज्योग्राफिक की तरफ से कोई रिपोर्ट सबूत नहीं है, प्रोग्राम नहीं है, सबूत नहीं है कि जी ये लोग केमिकल लगा रहे हैं अपनी लाशों पे, क्योंकि वो लगाते नहीं है ना। तो जब लाशें महफूज हो रही है तो भाई ये सबूत नहीं है क्या? प्रैक्टिकल मैरिकल नहीं हो रहा? एक जिस्म तरोताजा है, साइंस के उसूलों की धज्जियां उड़ी हुई है, कहाँ है साइंसी कवानीन? और आज से नहीं, आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ ये काम। आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म भी महफूज है कब्र में, वहां से लेके हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। चलो वो तो सब अंबिया कराम है, उनकी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो चलो कब्र मुबारक से नहीं कोई उनका जिस्म मुबारक निकालेगा, तो उनके पैरोकारों को ही देख लो 21वीं सदी के अंदर जो महफूज होकर जिनकी लाशें निकलती हैं कब्रों से कुदरती हादसात के सबब, तो वो क्यों महफूज है? उन्हें कैसे महफूज किया जा रहा है? और कौन कर रहा है? अगर मुसलमान केमिकल नहीं लगाते, अल्लाह कर रहा है। क्या ये काफी नहीं है मानने के लिए? उनके लिए जो अक्ल इस्तेमाल करने का दावा करते हैं कि वो बहुत अक्लमंद है, बड़ी रिसर्च करते हैं, तो साइंस की स्टडी करते हैं। कहाँ है साइंस? साइंस किसको कहते हैं? साइंस ये साइंटिस्ट का जो लफ्ज होता है कि साइंस ने ये कहा, साइंटिस्ट ने ये कहा, साइंस ने, व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस साइंस? आंखों से देख रहे हो, कानों से सुन रहे हो, अकल से सोच रहे हो। सूरज नजर आ रहा है और कह दो सूरज नहीं है, हम वजूद नहीं मानते सूरज का, तो जहालत है। साइंस कहाँ है? इसको साइंस कहते हैं क्या?
सिंपल थिंग ऑब्जर्व करना, एक्सपेरिमेंट्स करना। आप देख रहे हैं रिपीटेड एक ही रिजल्ट आ रहा है बार बार। नेक मुसलमानों की लाशें महफूज, नेक मुसलमानों की लाशें महफूज, काफिरों की लाशें सड़ रही हैं। रिपीटेड रिजल्ट है ये। शाकिब बाबा के मदार पे मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों जाते हैं, जितनी भी आवाम जा रही हो। रिपीटेड रिजल्ट है कि वहां जाने वाले लाइलाज मरीजों के इलाज ऑपरेशन हो जाते हैं। ये लाजमी नहीं कि सबके हो, सबके भी नहीं होते। जिनको अल्लाह चाहता है उन्हें शिफा मिलती है, शाकिब बाबा काम करते हैं। लेकिन जिनके हो रहे हैं वो तो रिपीटेड हो रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी का हो ही नहीं रहा, रिपीटेड हो रहा है। क्यों हो रहा है? मुसलमानों के बच्चे जो कुरान हिफ्ज़ कर लेते हैं, रिपीटेड रिजल्ट है, रिपीटेड मैरेकल हो रहा है। मैं वो मैरेकल्स बता रहा हूं जो रिपीटेड है, ठीक है। कहा है गैर मुस्लिमों में? मुसलमानों में तो है। अल्लाह का नाम ज़मीन आसमान के मखलूकात पर अल्लाह लिख रहा है, जब चाहता लिख देता है। बादलों से, चरिंद परिंद दरिंद पर, पत्तों पर, फलों पर, फ्रूट्स में, उनके मुंह से भी बुलवा देता है जहां वो जब चाहता है। रिपीटेड मायरेकल्स है, वो करता रहता है जब वो चाहता है, कभी भी कर लेता है। रिपीटेड है, रिपीट कर रहा है वो। फिर और इंसानी जुबान में जानवर इंसान की जुबान में कलाम कर रहे हैं। ये वो हेलो हाय की बात नहीं कर रहा मैं, जो एक इंसान बैठ के अपने पपी और कुत्ते बिल्ली को कहता है पहले हाउ बोलो, मियाओ बोलो, हेलो बोलो, फिर वो बड़ी मुश्किल से जाके कोई एक लफ्ज को दोहराता है। मैं इसकी बात नहीं कर रहा। बहुत से आते हैं ऐसी वीडियोस लाके वो शेयर करके कहते हैं देखो जी कुत्ते के पिल्ले ने और फलाने कुत्ते ने बिल्ली ने मियाओ बोल दिया, हाय बोल दिया, हेलो बोल दिया। ये इसको ये खुदाई काम होता है? अकल उनकी काम करती है? सोचो तो सही। वो क्या दिखा रहे हैं मेरे को लाकर, वो क्या लाके दिखा रहे हैं और क्या साबित करना चाह रहे हैं? एक इंसान खड़ा हुआ उसको हेलो हेलो कहने की ट्राई करवा रहा है। पहले तो ये यहीं पे पहले ही साबित कर रहा है वो अपने मुंह से कि वो ट्रेनिंग दे रहा है, वो कोशिश कर रहा है। प्लस फिर वो कोई 1 मिनट तक कंटिन्यूअसली खुद थोड़ी बोल रहा है किसी खुदा की पावर से। एक दो लफ्ज को कुत्ता, पिल्ला, दरिंद, कुछ जानवर अगर बोल दे तो क्या ये कोई सबूत हो गया खुदा का? नहीं। मैंने तो ऐसा कोई सबूत नहीं पेश किया जिसके अंदर जो है ना वो ट्रेनिंग दे दे के जो है ना कुत्ते के पिल्ले से हाय बोलो अल्लाह, बोलो अल्लाह, बोलो अल्लाह, बोलो अल्लाह, तो फिर वो कुत्ते का पिल्ला उसे हर एक को रिपीट कर रहा है। मेरा कौन सा सबूत है कुत्ते के पिल्ले में? 3 कुत्ते के पिल्ले का सबूत है अल्लाह के फजल से। वो अल्लाह ने बुलवाया हुआ है। तीनों कुत्ते के पिल्ले 1 मिनट से ज्यादा अल्लाह का नाम पुकार रहा है। कोई इंसान उन्हें ट्रेनिंग नहीं दे रहा, कोई मुस्लिम उन्हें ट्रेनिंग नहीं दे रहा, कोई मुस्लिम उन्हें ये कह नहीं रहा कि रिपीट करो। वो 1 मिनट तक बोल रहा है, बोल चुके। लाओ कुत्ते के पिल्ले ले आओ, 3 कुत्ते के पिल्ले ले आओ अगर सच्चे हैं गैर मुस्लिमों के खुदा। 3 कुत्ते के पिल्ले ला दो अगर अल्लाह खुदा नहीं है। लाओ 3 कुत्ते के पिल्ले जो गैर मुस्लिमों के खुदाओं का नाम पुकार रहे हो, उनकी ताकत से, बगैर इंसानी मुदाखलत के, बगैर किसी ट्रेनिंग के, वही ले आओ। और नहीं ला सकते, हरगिज़ नहीं ला सकते। 3 कुत्ते के पिल्ले मुश्किल है तो 1 कुत्ते का पिल्ले ही ले आओ। तुम ये भी नहीं कर सकते तो किस की बातों में जा रहे हो और कहाँ किन खुदाओं की पूजा करने में लगना चाहते हो? अगर गैर मुस्लिमों से मुतासिर हो उनके बयानात से, या अगर अल्लाह का इनकार करते हो एथिस्ट के बयानात से मुतासिर होकर, तो किस बुनियाद पर, किस सबूत पर? या तो जो सबूत है उनको गलत साबित कर दो, कर लो अदालत में चैलेंज इन सबूतों को, गलत साबित कर दो, या अपने सबूत ले आओ, पर कुछ तो करो। अगर गुमराही में रहोगे तो जिस तरह उस एथिस्ट ने कहा कि वो लाओ ऐसा सबूत जो साबित कर दे कि जो नाम का खुदा नहीं है। अरे तो जब सबूत इतने सारे अल्लाह के वजूद में मौजूद हैं तो ये सबूत खुद साबित कर लें कि जो नाम का कोई खुदा एग्जिस्ट नहीं करता। अगर होता तो वो जो अपना नाम बुलवाता ना कुत्ते, बिल्ली, शेर, दरिंदों से, अगर वो जो नाम का कोई खुदा होता तो अपने एथिस्ट की लाशों को तरोताजा रख के दिखाए ना। वो तो नहीं दिखा रहा ऐसा कुछ भी। तो मतलब साहब अल्लाह के होने में सबूत मौजूद है जो काउंटर कर रहा है कि जो नाम का खुदा भी नहीं है और अल्लाह के सिवा कोई और खुदा भी नहीं है। और किसको कहते हैं? हो तो गया काउंटर। ये जो मैंने इतनी बात की अल्लाह के फजल से की ना ये बात, तो जो स्टोरी शुरू की और बताया मैंने कि ऐसा वाकया हुआ, ये जो इसके साथ जो ये मैंने बातें कही है ये उसी के हवाले से कॉन्टेक्स्ट में आया सब कुछ अल्लाह के फजल से। अल्लाह अकबर। सोचना वो उसकी क्यों बोलती बंद हुई, इस हवाले से डर लगने पर कि जी वो आना नहीं चाह रहा था। वजह यही, अगर कन्विक्शन हो किसी में, यकीन कामिल हो 100% कि हाँ वो सच पर है, उसने दावा किया वो सच है, वो 100% दुरुस्त है और वो हिल नहीं सकता इस पर, हिला क्या शिकस्त नहीं दी जा सकती, तो भागेगा नहीं। उसका डरना ही इस बात का सबूत था। उसका डरना, घबरा जाना कि दाल में काला था। वो दाल में काला क्या था वो तो मुझे भी पता है,
वो तो क्या सारी दुनिया के एथिस्ट मिलकर इकट्ठे हो जाए अगर, और एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो जाए और वो मुझसे मुकाबला करें इस बात पर कि वो अल्लाह के वजूद को गलत साबित कर सकें, या अपने कोई नाम बना लें जिसे वो खुदा कहें, मैं उनके खुदाओं को झूठा साबित कर दूंगा अल्लाह के मौजज़ात के जरिए, लेकिन वो अल्लाह के मौजज़ात को गलत साबित नहीं कर सकेंगे, इतने बेबस और मजबूर हो जाएंगे। दावा है मेरा अल्लाह के फजल से, ये लेजेंड ऑफ अल्लाह का दावा है अल्लाह के फजल से। लाओ दुनिया से कौन, जब नहीं कर सकते तो फिर किस बात के ऊपर अकड़, किस बात के ऊपर बहस, किस बात में दुनिया भर में लड़ाइयाँ कर रहे हैं ये दुनिया के इंसान जो लड़ रहे हैं। देखो तो सही इनकी हालतें, कैसे कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे हैं आपस में। तो देख लो हिंदुस्तान की तरफ कैसे मुस्लिम हिंदुओं की लड़ाइयाँ आपस में होती हैं, देखो किस तरह हिंदू मुसलमानों को मार रहे हैं जय श्री राम कर करके। इन हिंदुओं का अकल है कि ये जिनके नामों में मार रहे हैं उनको, वो तो खुदा ही नहीं है, असल खुदा तो मुसलमानों का है। तो इन हिंदुओं को किसने बेवकूफ़ बनाया हुआ है, इन हिंदुओं को किसने ब्रेन वॉश किया हुआ है, उनके मजहबी पंडित पादरी पेशवाओं ने, वो बेवकूफ़ बना रहे हैं हिंदुओं को जो मार रहे हैं मुसलमानों को। और किसने ब्रेन वॉश किया, बचपन से मुस्लिम पैदा हुए थे, इनके पेशवाओं ने उनको ब्रेन वॉश करके हिंदू बना दिया और बातिल खुदाओं की पूजा पे लगा दिया अल्लाह के मुकाबले पे, और अब वो बेवकूफ़ बने हुए मुसलमानों से लड़ रहे हैं। या तो भाई अपने ये खुदाओं को साबित कर लेते फिर मुसलमानों को मारे तो चलो समझ भी आती है, साबित कर नहीं पा रहे, बेबसी खुद पे तारी है, लेकिन गुस्सा मुसलमानों पे निकल रहा है। तो क्या पता लग रहा है, यही कि मुसलमान मजलूम है, मुसलमान सच्चे खुदा के पैरोकार हैं और मुसलमानों पर जुल्म किया जाता है दुनिया भर के अंदर, चाहे वो हिंदू कर रहा है, चाहे ईसाई कर रहा है, चाहे यहूदी कर रहा है, चाहे एथिस्ट कर रहा है, चाहे कादियानी कर रहा है, चाहे शिया कर रहा है, कोई भी कर रहा है। ये जितने भी मज़ाहिब के मैंने नाम लिए हैं सब के सब बातिल मज़ाहिब हैं, सिर्फ इस्लाम सच्चा दीन है और अल्लाह के नज़दीक सिर्फ मुसलमान होता है, मुसलमान, समझे। बुरा होगा सड़ा गला दिया जाएगा और नेक होगा तरोताज़ा रखा जाएगा, और उसका फैसला अल्लाह करता है उसके अमाल के सबब। सोचना इस चीज़ पर कि किधर निकल रहे हो, किन की बातें मान रहे हो, किन से सुन रहे हो। सबूतों के साथ, नेचर के और मौजज़ात और मायरकल्स के साथ अगर कोई है जो अपने खुदा को साबित कर रहा है अल्लाह के मुकाबले पर, लाओ से मेरे सामने भी लाओ, मुझे भी बताओ कौन है वो कौन पैदा हुआ है इस दुनिया के अंदर जो अल्लाह के वजूद को गलत साबित कर रहा है मौजज़ात के जरिए, अपने खुदा के पेश किए हुए, जो जिसको वो खुदा मानता है। आ जाए सामने, लाओ कौन है जो बगैर किताब के कर रहा हो, दुनिया की कोई किताब इस्तेमाल ना करे। नहीं ला सकते क्योंकि अल्लाह के मुकाबले पर कोई खुदा नहीं है जो मायरकल्स डेमोन्स्ट्रेट करे रियल वर्ल्ड के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन कर करके, और एक बार नहीं कई बार करे। और जब है नहीं तो अकल इस्तेमाल करो और सोचो, कलमा पढ़ो और दिन इस्लाम में आ जाओ। और अगर नहीं तो बस मैं फोर्स करने का पाबंद नहीं कि ज़बरदस्ती कलमा पढ़ो, करोगे पढ़ोगे अपनी मर्जी से आओगे, अपना फ़ायदा करोगे, और अगर नहीं तो अल्लाह सारी मखलूक़ात और तमाम जहान वालों से बेनियाज़ है। अल्लाहु अकबर।